इसी से हम लोग को पता चलता है कि इसमें जरूर कुछ जहरीला टाइप का है। There are three kinds of radiations: alpha, beta and gamma. While alpha cannot penetrate the skin, beta can to some extent. Gamma is a powerful ray and can penetrate not only through the human body, but even through a 30 centimeter thick concrete wall. Though invisible to the naked eye, radiation causes irreparable damage to all living organisms. The penetration of alpha radiation is low, but when it enters the human body, it continuously keeps radiating. कोई अगर जिसका प्रेगनेंसी में उधर से गुजरता है तो वो लोग को इसका इफेक्ट हो जाता था, तो एवर्शन हो जाता था। तो लोग क्या समझते थे, भाई वहां भूत है, गिया था इसीलिए ये चीज हो गया, नहीं तो नहीं होता था। लेकिन अभी जो हम फिलहाल हम लोग देखते हैं, भूत तो नहीं था, उसका एक तो जो रेडिएशन पावर है उसी का एक तो मतलब अंश है। Every kilogram of uranium yellow cake leaves behind thousands of tons of waste, both liquid as well as solid. This is known as tailing. This entire process consumes large amounts of water, almost 3 times the quantity of the ore. Even after the extraction of uranium, over a dozen highly radioactive elements like thorium, radium and radon remain in the waste. All these highly radioactive wastes are flushed with the tailing to the dam site called the tailing dam, where they continue to radiate for thousands and thousands of years. कुछ आदमी बोलता है ये सब तो ऐसा बीमारी तो हम लोग देखे भी नहीं थे, बकरी भेड़ी ये सब का, किसी का दांत गिर गया, किसी का मतलब ये सब छिला गया, ये जो है ये पोजीशन सब छिला गया, मतलब कट करके अपने आप गिर गया। The radioactive waste can spread from the tailing dam in many ways. Radon and other radioactive gases can spread over huge areas. Winds can blow away the sand-like radioactive waste from uncovered tailing dams. These radioactive particles enter our body through different routes. This radioactive water enters the underground water, rivulets, ponds and streams and travels far and wide. Through the food chain, radioactive nuclides also enter our bodies, where they keep radiating within the delicate tissues of the body. जमीन जब लिया गया तो यहाँ का मांझी परगना को पूछा गया था कि हम आपका जमीन ले रहे हैं और यहाँ यूरेनियम माइनिंग हम लोग करेंगे, ऐसे पूछा था। ये सब जो मांझी परगना किसी को लोग पूछा नहीं, हम लोग माइंस खुलना, गवर्नमेंट का जगह हमको लेना है ले लेंगे, आप लोग कितना भी कुछ कीजिए, क्या करेगा। आदिवासी हम लोग को जानकारी, आदिवासी का लिए कोई सहायता कोई देने वाला नहीं है। While we all are exposed to some amount of natural radiation all the time,
The concentration of radiation at the tailing dams increases the health risks of the people around the area. जिसको भी रेडिएशन मिल जाता है, ये नहीं कि वो सभी मर जाते हैं कैंसर से। 1000 लोगों को आपने रेडिएशन दिया और 1000 लोगों को आपने कोई रेडिएशन नहीं मिला, तो इनमें अगर 10 लोग कैंसर से मरते हैं, इसमें शायद 20 या 25 लोग मरेंगे, सभी नहीं। सबसे पहले ये बात, ये बच्चों का भी यही हिसाब है। आपके जो बैकग्राउंड में जहां पर कोई रेडिएशन नहीं, कोई भी ये नहीं, वहां पर भी ऐसे लोग पैदा होते हैं, विकलांग या अंधा है जन्म से, ये बहरा है या, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा होगा। क्या चीज है ये वाला? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? हम लोग का भाषा है। हाँ? तिरिल बोले। ये जो अभी ये बीजा हुआ है ना, ठीक से नहीं हुआ है, ऐसे हो रहा है, जोड़ा जोड़ा। पहले ऐसा होता था? हाँ, अभी ऐसे हो रहा है। काहे ऐसा हो रहा है? ये तो हम नहीं बोल सकता है। For the construction of the first tailing dam at Jadugoda, the rice fields of the tribals were taken away by the Uranium Corporation of India Limited, or UCIL. When this was filled, a second dam was constructed, further displacing villages. अब रह गया कि जब हम यूरेनियम निकाल लिए उससे, हम तो यूरेनियम माइंस करके तुरंत फेंक नहीं देंगे, तो यूरेनियम जो बचेगा वो बहुत ही कम रहेगा उसमें, समझ गया ना। और वो यूरेनियम क्या होता है कि अगर डैम बना हुआ है, उसका पानी अगर निकाल करके हम ट्रीट कर दिए, तो उसमें जो भी घुला हुआ यूरेनियम रहेगा, रेडियम रहेगा, जो भी रहेगा, वो सब निकल जाएगा। फिर उसको हम डाल देंगे। वो तो आप पिएंगे नहीं, आपके पास आएगा नहीं, वो तो चला जाएगा नीचे, जहाँ हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इसका जो डस्ट उड़ेगा वो आपके ऊपर आ सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ असर हो सकता है, लेकिन वो एकदम बालू है, नदी के किनारे जो बालू है उससे ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा उसका। लेकिन उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन लेंगे। वो बालू आपके ऊपर, एक तो है कि आपके घर की तरफ नहीं आएगा, डायरेक्शन उधर जाएगा, उसका दूर है वो। उस पर हम लोग घास उगाते हैं, उसको गीला रखते हैं, और उसका इस तरह से हम लोग डिस्पोजल करते हैं कि हमेशा थोड़ा पानी बना रहे, जिसे गीला रहे, आपके ऊपर ना हो। जो एनर्जी निकलती है, जो रेज निकलती हैं, वो आपके पास पहुंचेंगी नहीं, वो गैस फार्म में होकर ऊपर निकल जाएंगी। तो इस तरह से आपके ऊपर नहीं आएगा। आप देख ले डाउन स्ट्रीम में जो हमारा डैम है, उसके नीचे रोड साइड में कितने मकान हैं, कितने आदमी अफेक्टेड हैं। जो बोर्ड दिया था नो एंट्री रेडियोएक्टिव एरिया, ये क्यों दिया था और क्यों उसको तोड़ दिया गया? इसलिए कि कोई वहाँ का बालू उठावे ना, उस पानी में जाके नहाए ना, वहाँ पर कोई गाय न चरावे। नहीं, इसके बारे में तो जैसे हमारे लोगों को एकदम पता ही नहीं है कि ये यूरेनियम से, कि ये कचरा से कुछ रेडिएशन होता है। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। नंगा पैर इसमें चल जाता है, आना जाना, यहाँ पर बैल बकरी सब तो यहाँ रहता है। "30 years ago, many gave up their lands for the construction of mines, mills and tailing dams. Today, they have no option but to risk their lives living near the dams and collecting stones from the mine tailing for a livelihood." यूरेनियम का ये धागा कहाँ से मिला? ये जो किचड़ा गिरा है ना, उधर लड़का लोग लेके आया, उधर से किचड़ा उधर गिरा था ना टेलिंग पॉन्ड में। हाँ, उसमें ये टुकड़ा उकड़ा बहुत से ऐसे किचड़ा का साथ में मिल का अंदर से
इसको ले आता है, उधर गिरा देता, लड़का लोग को लेके आता।